A very warm welcome to everyone in this investiture ceremony 21-22. As you know, that this is one of the first momentous occasion of the school where the newly elected and selected members of the school senate are officially vested with their powers and positions. Students of today are the visionaries and torchbearers of tomorrow. When we develop personality, skill, and mind, we develop responsible human beings with leadership qualities. So, with this thought, let's welcome the guest of today's ceremony, Dr. Ram Narayan Dwivedi ji. He is the head of Department Vyakaran Sanskrit, DHU. He is the master of several languages, and not only this, he has published many books. He has received various awards in literatures on state and national level. He has been working as an active member in Kashi Annapurna Ganga Trust Varanasi and various other organizations too. He has participated in various seminars and conferences. तो जैसा मैंने पहले भी आप सभी को कहा है कि इनके बारे में हमारे पास शब्द नहीं है। अगर हम सर की तारीफ करते रहें तो ये समय कम पड़ जाएगा। तो आज हमारे बीच आप सारा परिवार में आए और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए, अपना कीमती समय निकालकर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं डॉक्टर राम नारायण द्विवेदी जी। Now it's a time to meet our members of Student Council. Let's start with the head girl. And this year, our head girl is Shreya Singh. She has participated in several Olympiads and she has appeared in Mona also. She has been awarded with the certificate of the best performer for the Indian Army Act. She has also been awarded with the certificate of the best speaker in an international webinar commenced by London University for the topic of spreading positivity in India. She has been awarded twice with the certificate for the best speaker from the Against in the debate competition. She has also participated in the Youth Parliament. Congratulations, Shreya. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. And our next candidate, that is the head boy of the year 2021, is none other than Sujal Chaubey. He is one of the most disciplined boy. He has participated in several Olympiads. He has also participated in various competitions and worked as house captain too. He has won second prize in elocution competition, and not only this, Sujal, he has worked for the editorial board member. Congratulations, Sujal. Thank you, ma'am. It's my honor. We have a great expectation from both of you, Sujal and Shreya. The next category is for the hostel representative, and you can easily recognize our photographer. He is none other than Tarun Rai. He is not only interested in photography, he is a great writer, and he has a jolly nature too, and he organizes the events so well. Congratulations, Tarun. Our next candidate of the hostel representative is Priya Singh. She is
a disciplined and active leader. Not only this, but she has excellent sports also. Like she was the first runner-up in basketball cluster tournament 2018, and she got first place in basketball cluster tournament 2019. Not only this, she was the first runner-up of Santatulanand Residential Academy Trophy 2019. And apart from this, she is the best scorer discipline, and she kept participating in different activities, Ritivaj Mahotsav, and etc. Priya, heartiest congratulations to you. Thank you so much, ma'am. And now let's move towards the next category, that is the president of academic wing. She is none other than Khushi Gautam, very focused and versatile girl. She got 5th rank in Maxtop Olympiad, got 111 rank in stage tech. She has participated in various quiz, and not only this, she just involved herself in several activities like video making, essay competitions, and she secured first rank in that. She has also participated in youth parliament and debate competition. We have a high expectation from you, Kuchi. Congratulations. Thank you, ma'am. Thank you so much. Our next category is for the sports president, and he is none other than Harsh Rai. As you can see his achievements on the screen, he won the gold medal in 200-meter race. He has got a silver medal in 100-meter race, and he has also received a silver medal in 100-meter hurdle race. Not only this, he is a great footballer and athlete player. Congratulations, Harsh. Thank you, ma'am. Our next category is President Cultural Club. She is none other than Prachi Singh. She is good in sketching, singing, cultural activities, cooking, reading books, novels, etc. Not only this, but Kushi has got second position in astronomy in Orange Global Olympiad. Congratulations, Prachi. Thank you, ma'am. Now let's move towards the next category, that is of the chief editor. And you can easily recognize who is she? She is Zamzama Faraz. What you can say about Zamzama? She is a creative writer, multitasker, and a good team leader. She has received a certificate from editorial board, right? Also, she is working with editorial board and doing wonders there. She has also participated in global deliberation program introduced by our school. Congratulations, Zamzama. Thank you so much, ma'am. Thank you. We want to see your creativity in the upcoming edition of our Yugantar. I'm gonna try my best. The next category is for the president of Eco Club. She is none other than Niharika. She is very focused, creative, and hardworking girl. Niharika, heartiest congratulations to you. Let's move towards the next category, that is the president of Heritage Club. She is none other than Anuradha. She is very active participation in the speech competition, and she has scored first position in KSAT exam. Not only this, she is always ready to learn new things. Congratulations, Anuradha. Thank you, ma'am. Our next category is for
the President Literary Club. And he's none other than Rohit Asthana, the creative writer and a good leader. इसके साथ ही साथ रोहित की क्रिएटिविटी मैंने देखी है काव्य सम्मेलन में, like he used to participate in all such activities too. Congratulations Rohit. हाँ ठीक है मुझे लग रहा है शायद मैडम की ऐसी आवाज़ आ रही थी क्या, मैडम को एक मैसेज कर दें कि म्यूट रखें, उनकी ऐसी आवाज़ आ रही है। And not, it is the last but not the least, the last category is the president of ICT Club is none other than Ashutosh Mishra. He is ready to learn the innovative ideas, techniques, and not only this, he has also participated in corrective speech, youth parliament, Rituraj Mahotsav, and received several certificates. Congratulations, Ashutosh. A very good morning to all of you present here. It is indeed a very bright and enthusiastic morning for me and everyone who got invested today. I am Sujit Chobe, addressing the gathering as the head boy of SARA for the very first time. But before I address the gathering, I would like to address the clueless boy who came to Varanasi from Mumbai a year ago, who dealt with culture shocks and the pressure of fitting in, and tell him that, boy, we made it. And this is only possible here at SARA. The school gave me the platform to shine on right from the start. Even though I spent most of my time in this school, online instead of offline, SARA embraced me with wide open arms, and I felt a part of it at once. And today, everyone can see how much SARA has accepted me. I want to make my identity for myself in the crowd, and it seems very daunting initially, but from today onwards, I will be identified as the head boy of SARA. It's an honor really. And I know that I have big shoes to fill. For the students who came before me, maintain the dignity of this position. And I intend to walk in their shoes, but at the same time, mark my own place in the pantheon of respectable student leaders of SARA. My teachers and the panel members have entrusted me with a huge responsibilities, and I want to ensure them that I will be taken this post seriously and discharge all my duties with utmost sincerity and dedication. There is a saying that the beginning are daunting and the endings are bittersweet, but it is everything in between that makes it worth living. So I'm excited to embark upon the glorious journey on which a select few have the opportunity to be on. Our honorable mentor, Vishal sir, had said in one of his editions of our e-magazine, Yugantar, and that we need compassion, positivity, empathy, unity, and readiness to extend help. And I intend to do all this and more with my prefectorial board. Thank you, dear sir, for being our beacon of inspiration, and dear director ma'am, for always instilling the best value in us. We will forever indebted to both of you for being so invested in all your students. And to our respected principal sir, HS ma'am, HM ma'am, I will just say that I will bear the title of head boy with dignity and make you all proud. To the head girl and my prefectorial team, I have an iconic line from the poet Robert Frost. We have miles to go before we sleep. The work has only begun, and I cannot wait to lead this amazing team. This is Sujan, your head boy for the year 2021-2022, signing out. Thank you so much, Sujan. Now it gives me immense pleasure to invite a newly selected head girl of SARA, Shreya. Shreya, Am I audible? yeah, you are audible. Muhammad Ali won 2 for me as well. As I had nothing to aim for, no motivation, no dreams, no desires, I would not have been sitting here for treasure role as the head girl of SARA. Respected Director ma'am, chief guest,
Principal sir, teachers, my team, and all the dignitaries over here. A very good morning to all of you. I still remember the day when I entered in this school. That day when I was in class 9, being a part of crowd and gazing to the girl who is addressing to the whole. Her bag was different from us. It seems like she's the one, the only one. And now I have become that one. Shreya Singh, see, it feels like my dreams got its reality. Sound cliche, right? But believe me, it does. Thank you. I want to thank my parents for supporting me throughout, and I want to show my sincere gratitude towards all the teachers who have been motivated me from class 7 to till now. This is vigorously happy to have such a designation which motivate me and which adorn my skill as a person as well. Being a head girl, my first and foremost obligation is to take lead of my council member to make bridges and connections, not to make barriers and walls. Coming together is beginning, keeping together is progress, and working together is success. And today we all are here to start a new journey of academic year 2021-22. This is the time where the required upliftment in character is needed, so that the student, as well as the future of the country, could put an indelible impression on the world. Rest in short, I want to say that you will not be disappointed, and we will work together in the spirit of the true teamwork to have such a great height. And I want to end this with a message for my fellow council members that let others lead small lives, but not you. Let others cry on small things, but not you. Let others leave their future in someone else's hands, but not you. So, okay, it's time to quit, but remember it's not end, it's a beginning. And so activating my account as the head girl of SARA year 2021-22. So here on it begins. Thank you so much everybody. Thank you so much. बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सरोजनी मैम, अपना कीमती समय निकालकर यहाँ हम सबके बीच आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारा परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है इस इन्वेस्टिचर सेरेमनी में। थैंक यू। हमको तो मैं आप लोग को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे याद किए और बुलाए। मैं ये बोलती हूँ, my heartfelt thanks and gratitude to the Sara family for inviting me on this occasion, auspicious occasion. I also thank all the teachers for their love and respect for me. I am honored for being part of the prestigious school, which would not have been possible without affection, love and respect of Dr. Divya, Director of Sara family, of this institute. Last but not the least, my blessings to all the teachers, students and employees of Sara family. Thank you. मैं सबसे पहले तो आपके जो हेड बॉय और हेड्स गर्ल्स सब सिलेक्ट हुए इसी साल की 20 और 25 और 22 की, इन लोगों को कंग्रेचुलेशन देना चाहती हूँ। और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है, मुझे पूरा विश्वास है और पूरा फेथ है। जो भी काउंसिल तय किया है, जो भी सिलेक्ट किया है हेड बॉय और हेड गर्ल को इसी साल की, ये लोग जरूर से आपके स्कूल को बहुत ऊंचाई पर उठाएंगे। ये तो मेरा पूरा विश्वास है। मेरा ब्लेसिंग्स टू देम, ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द हेड बॉय एंड हेड गर्ल्स। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमलापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम। आज बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि संत अतुलानंद आवासीय अकादमी के द्वारा जो सारा परिवार के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम है, जिसमें हमारी चीफ गेस्ट के रूप में हमारी काशी हिंदू विश्वविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर
सरोजनी महापात्रा जी उपस्थित हैं, मैं उनका सादर अभिवादन वंदन करता हूँ। हमारी उनकी कई बार की मुलाकात ऑनलाइन ही हो पा रही है, भारतीय जनता पार्टी की 1-2 मीटिंग में और गुरुवात्री अड़ी में ऑनलाइन ही हम लोगों की मुलाकातें हुई हैं। और हमारी जो इस विद्यालय की डायरेक्टर हैं डॉक्टर दिव्या जी, उनको बहुत बहुत भगवान विश्वनाथ और माता अम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि वो दिनों दिन ऊर्जामयी, तेजोमयी, यशस्वी बने और ये विद्यालय पूरे देश में यहाँ के बच्चे नाम रोशन करें। और अभी मैं विद्यालय का एक कार्यक्रम सब सुन रहा था और जो हमारे विद्यालय सारा परिवार के जो बच्चे नवनिर्वाचित हुए हैं, इन लोगों की जो ऊर्जा है, इन लोगों की जो शक्ति है, इन लोगों का जो उत्साह है, उसको देख करके लग रहा था कि ये बच्चे देश के भविष्य हैं और इनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे वो देश में ही नहीं पूरे विश्व में इनकी यशोगाथा गाई जाएगी। ये मेरी शुभकामना है। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि हमें किस स्थान में पढ़ना चाहिए, किन स्थानों में जाना चाहिए। जैसा ये विद्यालय का नाम है संत अतुलानंद, नाम के आगे ही संत जुड़ा है और जिस महापुरुष के नाम से ये विद्यालय है, नाम नैव कीर्तिम लभते मनुष्यः तथा प्रशस्तम खलु नाम कर्मा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम भवति। किसी भी वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति उसका पदार्थ ज्ञान कारण होता है। जब हम किसी संस्था में पढ़ने जाते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता और भारतीय कल्चर हमें दिखाई देने लगता है कि उस नाम के आगे संत लगा है और वो मामूली संत नहीं है, वो काशी का वो संत है जिसने पूरे दुनिया में अपने संदेश दिए हैं। वो संत है स्वामी अतुलानंद और उनके नाम से ये संस्था और उनके परिवार के जो शिष्य है, जो दिव्या जी का परिवार है, जो विशाल सिंह जी का परिवार है और इनके जो ससुर जी थे स्वर्गीय श्री राज सिंह जी, उनसे भी मेरा बहुत स्नेह संबंध था और मुझे कभी कभी वो बुलाते थे अपने घर में, तो मुझे आने का भी अवसर प्राप्त होता था। तो ऐसे महापुरुषों की कड़ियों के द्वारा स्थापित ये विद्यालय आज पूरे काशी में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में अपना नाम और पूरे भारत में अपना नाम कमा रहा है। यहाँ के बच्चे जब जाते हैं बाहर और हमें पता चलता है कि कहाँ के बच्चे हैं, तो बताते हैं संत अतुलानंद आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं और छात्राएं रह रही हैं। मैं इनका वो विद्यालय भी देखा हूँ और वो आवासीय व्यवस्था भी इनकी मैं देखा हूँ। मुझे देख के लगता है कि हमारी काशी में जिस प्रकार से सांस्कृतिक, पारंपरिक और आधुनिक विद्याओं का संपूर्ण संरक्षण, भौतिकता के साथ साथ हमारी भारतीय सभ्यता को भी संरक्षित करने वाला एक कोई विद्यालय है, वो संत अतुलानंद आवासीय विद्यालय है। और सारा परिवार के बच्चे बहुत व्यवस्थित ढंग से अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के साथ साथ वो भौतिक विज्ञान को भी उसी तरह से अध्ययन कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो ये विद्यालय बहुत यशस्वी और बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। आप सभी प्यारे बच्चों, जिस संस्था में आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, सबसे बड़ा हमारा मूल कारण होता है कि हम अध्ययन कहाँ कर रहे हैं और हमें अध्यापन कराने वाले कौन से शिक्षक हैं। दो ही हमारे मूल कारण होते हैं हमारे विद्या अध्ययन के, कि हमारा पढ़ाने वाला शिक्षक और शिक्षिका का आचरण कैसा है, उसकी विद्या कैसी है, उसका विद्या वैभव कैसा है। मुझे अभी ये संचालिका मनाली जी कर रही थी, रति जी भी कर रही थी और अविनीश जी वगैरह सब लोग थे। मुझे देख के लगा यहाँ के ऊर्जावान जो हमारे शिक्षक हैं वो निश्चित इन बच्चों को भी उसी प्रकार से अंतः ऊर्जा को पैदा करेंगे, क्योंकि हमारे शास्त्रों में आया है कि विद्या सुविधा जन्मना विद्या का जन्म दो प्रकार का, परिवार दो प्रकार का होता है। एक विद्या से जन्म लेता है बच्चा और एक परिवार से जन्म लेता है। वंशो दुविधा, आचार्य महर्षि पाणिनि कहते हैं, आचार्य महर्षि कात्यायन कहते हैं, पतंजलि कहते हैं इस बात को कि वंशो द्विधा विद्या जन्मना चा। एक विद्या का वंश होता है और एक जन्म का वंश होता है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया विद्वान भी प्रसव करता है। विद्वान माने शिक्षक भी प्रसव करता है। शिक्षक की जो वंश परंपरा होती है, उसकी जो गुरुकुल परंपरा होती है, वो अनंत काल तक यशोगाथा को गाती है। जैसे हमारे महामना के जितने भी बच्चे हैं, जहां कहीं भी दिखाई देते हैं तो लगता है वो कहते हैं मैं सर वहीं का हूँ, और वो उसी आदर दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं। वो हमसे शिक्षा ग्रहण किए हो न किए हो, लेकिन उस गुरुकुल के छात्र होने के नाते या महामना के उस बगिया के छात्र हैं, उसी दृष्टि से आचार्यों के प्रति, शिक्षकों के प्रति उनकी दृष्टि रहती है। तो मेरे प्यारे बच्चों,
आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपकी डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या सिंह जैसी अन्नपूर्णा का प्रतिरूप है वो। मैं उनकी प्रशंसा इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं उनको जानता हूँ, मैं उनके बहुत दिन से उनको देख रहा हूँ और उस विद्यालय की प्रतिभा को देख रहा हूँ। हम एक बार इनके आवास पे भोजन करने गए थे, हमारे पूज्य ब्रह्मलीन महंत रामेश्वरपुरी जी महाराज थे, और इन्होंने जिस ढंग से वो भोजन करवाया जैसे लग रहा था कि मां अन्नपूर्णा स्वयं उस प्रसाद को दिला रही है। तो ऐसी मां अन्नपूर्णा की तरह आप सबको मातृ संस्था के रूप में डायरेक्टर प्राप्त हुई है, तो आप सबका तो यश होना ही होना है। और सभी शिक्षकों को इतने कुशलता के साथ, इतने प्रेम के साथ और इतने स्नेह के साथ आप सबको अवसिंचित करती रहती हैं, आप सबकी हित की चिंता करती हैं कि किसको कब कैसे क्या होना है। इस प्रकार का हित चिंतक जब अभिभावक, डायरेक्टर, प्राचार्य हमारी संस्था को प्राप्त हो और हमारे शिक्षक अपने छात्रों के प्रति एकदम संलग्न हो, उनके विद्या में कोई जो है किसी भी प्रकार का विषाद न करें। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। आप सबका विद्यार्थियों का दायित्व है कि अपना समय अध्ययन में बिताइए, अध्ययन से कोई प्रमाद मत करिए, अध्ययन से किसी भी प्रकार का आलस्य मत करिए, क्योंकि सुखार्थिनः कुतो विद्या विद्यार्थिनः कुतो सुखम। जो सुख की इच्छा रखेगा वो कभी विद्या का अभ्यास नहीं पा सकता, विद्या वैभव की संपत्ति को नहीं प्राप्त कर सकता है। और जो विद्या वैभव की संपत्ति प्राप्त करेगा, बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं है, कुछ काल आप लोग ये अध्ययन कर लेंगे। ये समय ऐसा है, इस समय में जो आप अर्जित कर लेंगे वो आपकी यशोगाथा को बनाएगा, आपकी पीढ़ी को अवसिंचित करेगा, आपके नव निर्माण को अभिरक्षित करेगा, संरक्षित करेगा। इसीलिए विद्यार्थी के 5 लक्षण हमारे यहाँ बतलाए गए हैं। काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जो विद्यार्थी के 5 लक्षण है, काक चेष्टा, काक की तरह चेष्टा रहनी चाहिए, जागृति रहनी चाहिए, बकुला की तरह ध्यान रहना चाहिए। काक चेष्टा, वको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च। जैसे श्वान माने कुत्ता का, कुत्ता की निद्रा होती है, तुरंत फट दे हुआ वो जग जाता है। गृह त्यागी, और घर का त्याग करके, घर के आवास से दूर रह करके जब आवासीय संस्थाओं में पढ़ते हैं तो आपकी विद्या, आपका वैभव, आपका यश अपने आप आपके नव निर्माण को जागृत करेगा, आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपको शक्ति प्रदान करेगा। इन्हीं सब बातों को मैं कहते हुए बहुत समय नहीं लूंगा और मैं अंत में जो मनाली जी संचालिका है बहुत कुशल संचालन कर रही हैं, उनको भी बहुत साधुवाद देते हैं और आप सबको प्रणाम करते हैं, बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। ये जो विद्यार्थी परिषद का नवनिर्वाचित जो विद्यार्थी हैं, ये जिस जिस क्षेत्र में अपने अपने काल में इनको दायित्व मिला है, वो अपने दायित्वों का संपूर्ण निर्वहन ईमानदारी के साथ, सत्य निष्ठा के साथ, कर्तव्य बोध के साथ और अपने आचार्य और आचार्याणी, हमारे यहाँ जो लेडीज टीचर हैं उनको आचार्याणी की उपाधि दी गई है और जो शिक्षक है उन्हें आचार्य कहा जाता है। इन दोनों को मातृदेवो भव पितृदेवो भव की धारणा के साथ, अपने गुरुओं के साथ, अपने टीचरों के साथ आज स्टूडेंट्स जो है अपनी ये धारणा रखेंगे, निश्चित भगवती जगदम्बा माता अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ आपको आपकी विद्या निश्चित सफल होगी। नहीं बंध्या सरस्वती, आचार्य पतंजलि कहते हैं सरस्वती बंध्या नहीं है, जो अध्ययन करता है उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होता है। आप इसी विश्वास के साथ विद्या का अध्ययन करिए और अपने कर्तव्य का निर्माण करिए। आपको कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्राप्त ना हो, वो निश्चित प्राप्त होगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं भगवती अन्नपूर्णा की प्रार्थना करते हुए आप सबको मंगल कामना देता हूँ और हमारी सीनियर जो प्रोफेसर सरोजनी मैडम है उनको मैं नमो नमः करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज के इस कार्यक्रम में आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और निश्चित रूप से जो आपके आशीष थे वो हम सभी के लिए, बच्चों के लिए, इस परिवार के लिए, विद्यालय के लिए, इस संगठन के लिए, इस नवनिर्वाचित परिषद के लिए माँ अन्नपूर्णा के आशीर्वाद और गंगा जल से अभिषेचन जैसा ही रहा है। और यह विद्यालय सनातन परंपराओं का वाहक है, सनातन मूल्यों का वाहक है। हमारे यहाँ जो छात्रावास का जो कंसेप्ट है वो यथोचित गुरुकुल पद्धति से प्रेरित कंसेप्ट है, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि जो विद्यार्थियों के या पूरे मनुष्य जाति के जो 3 ऋण हैं
हम उन्हें संस्कारित कर सकें कि वो तीनों ऋण से उऋण हो सके, तो कम से कम यहाँ पर गुरु ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, ये ऋण कैसे चुकाए जाएं, विद्यार्थियों को यह बताने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते। और आप जैसे जब उद्भट विद्वान, सनातन परंपरा के वाहक, सर्जक, उत्थापक हम लोगों के बीच में आते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, हमें गर्व की अनुभूति होती है। और आप सबका स्नेह और आशीर्वाद ये हमें निरंतर मिलता रहे, ये हम हमेशा कामना करते हैं सर। और साथ में आज इस कार्यक्रम में भौतिक रूप से भले ही उपस्थिति किन्हीं कारणों से हमारे बीच में आपकी या सरोजनी मैडम की ना रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस वर्चुअल माध्यम से प्रकट होकर के जिस तरह से विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया, उन्हें शिक्षाएं दी, तो आपने अपने उद्बोधन में पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, दो लोगों के लिए आपने देवताओं की उपाधि दी, लेकिन दो देवताओं के रूप में आप स्वयं उपस्थित हुए हैं इन दोनों से बढ़ के, क्योंकि गुरु देवो भव, अतिथि देवो भव। तो आज आप गुरु के रूप में भी और अतिथि के रूप में भी द्वय देवो भव के रूप में आए हैं। तो आप दोनों लोगों का यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आभार। और अब मैं सरोजनी मैडम हम लोगों के बीच में कुछ चीज़ें कहने जा रही थी, तो मैं आपसे पुनः प्रार्थना करूंगा मैम कि आप बच्चों को, हम सभी को अपने आशीर्वचनों से लाभान्वित करें। मैम, सरोजनी मैम। जी, मैं बहुत एक्चुअली सुबह का टाइम हो गया, सुबह थोड़ा सा किचन में काम रह जाती है। मेरे 3 प्रोजेक्ट और भी है, 2 बजे से शुरू हो जाएगी। मैं थोड़ा सा हड़बड़ी में बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, लेकिन हड़बड़ी में मैं थोड़ा सा इसको पूरा बता नहीं पाया। लेकिन मुझे आपके सारा फैमिली के साथ, मेरा तो बहुत दिन पहले से विद्या की वजह से आपके स्कूल के लिए मेरा तो आशीर्वाद हर समय है। मैं जब तक जीऊंगी तब तक मेरा आशीर्वाद आपके स्कूल के, मैं मरने के बाद भी मेरा आशीर्वाद रहेगा सारा लिए, सारा फैमिली के लिए और दिव्या के लिए। और सारे टीचर्स, इतने सारे टीचर्स है, वो टीचर्स को भी नहीं भूल पाऊंगी। इन लोग का जो रेस्पेक्ट है, मैं जब पहुंचती हूँ आप लोग के स्कूल में, इन लोग का जो रेस्पेक्ट देके और प्यार देके मैं इतना वसीवत हो जाती हूँ, मुझे लगता है मैं अपनी फैमिली में आ गई हूँ। मैं पता नहीं कहाँ चली गई थी, मैं अपने घर में आ गई हूँ। और स्टूडेंट्स, आपने टीचर्स, जो स्टूडेंट्स को आप लोगों ने तैयार किया है, हर साल जो हेड बॉय हेड गर्ल करके आपने सब तैयार करते हैं, वो बच्चे इतने टैलेंटेड है, इतने अच्छे हैं। हमको इतना गर्व होता है आपके स्कूल के ऊपर और टीचर्स के ऊपर, और दिव्या तो है ही, और सबके ऊपर इतना गर्व एहसास होता है। इतने अच्छे बच्चे आप लोग तैयार करते हैं, जो कि फ्यूचर में आपके स्कूल की ये लोग सब गर्व, प्राउड बन के रहेंगे। जहाँ भी ये लोग रहेंगे, जहाँ जाए, चाहे अमेरिका जाए, इंग्लैंड जाए, कहीं भी जाए, भारत से बाहर जाए, लेकिन हर समय के लिए आप लोग के स्कूल के लिए ये गर्व रहेंगे। हम थोड़ा सा कुछ मैंने ये हेड बॉय और हेड गर्ल के लिए कुछ लिखे थे, अभी तो टाइम नहीं होगा इसलिए मैं डिटेल नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा पॉइंट्स इन लोग के लिए बताऊंगी जो कि इन लोग को ध्यान में रखना चाहिए हर समय, तब जाके वो लोग और भी अच्छा काम कर सकते हैं और ऊपर उठ सकते हैं। और सबको, जितने सारे बच्चे हैं, खाली हेड बॉय और हेड गर्ल हो जाने से बसिज्म नहीं होता है, बस नहीं हो जाते हो किसी का, वो सारे बच्चों को लेकर चलना पड़ता है। इन लोग को, जितने सारे बच्चे इन लोग के अंडर में रहते हैं, इन लोग को लेके, इन लोग के व्यवहार, इन लोग की गाइडेंस, जितना इन लोग को काम देंगे, इन लोग को सिखाएंगे, जितने सारे काम करेंगे, इससे बहुत अच्छा होगा। इन लोग का लीडरशिप जो है बहुत अच्छा होगा। तो हम थोड़ा सा पॉइंट्स बताना चाहती हूँ। पहले तो मैं चाहती हूँ कि लीडर शुड हैव विजन होना चाहिए एक इनके लिए, और लीडर मस्ट बी एबल टू ये इन लोग को एक पाथ ट्रैवलर होना चाहिए, सो दैट ये लोग एक
आंख दिखा सकते हैं बच्चों के, इनके अंडर में, इनके क्लास में जो भी कोऑर्डिनेटर बने हैं, जो भी हैं, ये लोग हर बच्चे को कुछ ना कुछ दिखा पाएंगे। और सक्सेस और फेलियर तो होता रहता है। अब्दुल कलाम जी भी एक बार सैटेलाइट भेजे थे, वो फर्स्ट टाइम वो फेलियर हुए थे, लेकिन नेक्स्ट टाइम इन्होंने इतना सक्सेस प्राप्त किए थे कि हमारा भारत की गर्व है वो। और नेक्स्ट पॉइंट इज कॉरेज। इन लोग को हर समय कॉरेज रखना चाहिए, अपने मन में करेज रखना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। और नोबिलिटी इन मैनेजमेंट, इसके बाद पर्सनल पावर भी होना चाहिए इन लोग के पास, और कम्युनिटी स्किल तो होना चाहिए। कम्युनिटी स्किल नहीं होगा तो ये लोग आगे नहीं बढ़ सकते। स्किल बहुत जरूरी है इनके पास। माने इन लोग का गाइडेंस से हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये बच्चे कितने आगे जा रहे हैं। इन लोग की वजह से ही, इनका गाइडेंस से ही ये लोग आगे जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने की इनके पास ताकत होना चाहिए। इन लोग को, बच्चों को पूछना चाहिए इन लोग के पास क्या प्रॉब्लम है, क्या है। सबको मौका देना चाहिए, इन लोग को मौका, जितने सारे अंडर में है सबको मौका देना चाहिए और सबको पूछना चाहिए इन लोग के पास क्या कैबिलियत है, इनके पास क्या है। सबको गाइडेंस दे के इनका प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए। और ये लोग जरूर से एक गुड लिसनर होना चाहिए, क्योंकि सबकी बात जब तक वो लिसन नहीं करेंगे, सबकी बात, ये लोग सबकी बात अगर नहीं चाहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। सबकी प्रॉब्लम सुनेंगे। इन लोग के पास पेशेंस होना चाहिए सबकी बात सुनने के लिए। इसके बाद जो रेस्पॉन्सिबिलिटी इन लोग को दिया गया, इस साल जो रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, इसको अच्छे से निभाना चाहिए और इसको कितना वो लोग कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि एक मुझे वो सोचेंगे कि हम सब कुछ कर लेंगे, एक ही साल में हम सब कुछ कर लेंगे, ये नहीं सोचना चाहिए। हम जितना कर सकते हैं इसको अच्छे से निभाएंगे। और अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, वो बीच रास्ते से हम लौटेंगे नहीं, इसको पूरा करके ही रहेंगे। ये मेरी इनको एडवाइस है। और दूसरों को मौका देना चाहिए और रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस देना चाहिए सबको, जितने सारे बच्चे हैं। और टीचर्स की वजह से तो इनको बने हैं, टीचर्स को रिस्पेक्ट देंगे, टीचर्स को मैंने बीच में टीचर्स की गाइडेंस लेना चाहिए। इन लोग को टीचर्स को पूछेंगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं और आइडियाज लेंगे। बच्चों से भी इन लोग की क्लास, बच्चों से भी इन लोग को मिलेगा, काफी आइडियाज मिलेगा। ये बात नहीं कि दुनिया में जो लीडर बन गया इनके पास ही सारा आइडियाज है, सबके पास, दुनिया में सबके पास कुछ न कुछ आइडियाज है। तो अगर वो लोग सुनेंगे, इनके बात सुनेंगे, आइडियाज को सुनेंगे, इसके प्रॉब्लम को सुनेंगे और कुछ सॉल्व करेंगे। मैं लास्ट को वही थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, कहता है परिंदा। अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है। जमी नहीं है मंजिल मेरे, जमी नहीं है मंजिल मेरे, अभी पूरा आसमान बाकी है। Thank you so much. Thank you so much, Sarojini ma'am. Your words are really very precious for all of us, especially for the students. जो tips आपने दिए, like बच्चों को एक तरह से मोटिवेटर होना चाहिए, खुद रास्ते पे चलकर रास्ता बनाना चाहिए, लीडर्स की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, एग्जाम्पल्स सेट करने चाहिए. So all these things definitely are the tremendous and beautiful words that would guide to our students in tremendous way. So madam, thank you so much कि आपने और सर आपने अपने व्यस्ततम शेड्यूल में से ये समय निकाला हमारे बीच, हमारे बच्चों के बीच में अपने आशीष वचनों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए. और निश्चित रूप से ये हम सबका बहुत परम सौभाग्य है कि आप जैसे मेंटर्स हमारे विद्यालय को हमें मिले हैं, जिनसे हम अनवरत सीखते रहते हैं. और यह लाभ, यह बेनिफिट, यह सिर्फ और सिर्फ शिक्षक जीवन में हो सकता है कि हम अनवरत विद्वानों की संगति में रहते हैं. आपसे, आप जैसे लोगों से सीखने का मौका मिलता रहता है. तो शिक्षकत्व और साथ में उसके शिष्यत्व, ये दोनों ही बरकरार रहती हैं, ये दोनों जीवित रहती हैं, ये दोनों निरंतर चलती रहती हैं. तो आप सभी का, आप दोनों लोगों का, विशेष रूप से अतिथि द्वय जो हमारे बीच आज उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आज के इस कार्यक्रम में
उपस्थिति के लिए और आपसे प्रार्थना कि जैसे ही विद्यालय आरंभ होता है हम पुनः आपको आमंत्रित करेंगे, भौतिक रूप से विद्यालय में आप आएं और आपकी चरण रज इस सारा प्रांगण को नसीब हो, ये हमारा परम सौभाग्य होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप सभी का। थैंक यू सो मच। ये हमारी सौभाग्य है आपके पास आने के लिए। और मनाली ने तो इतने अच्छे से इंट्रोड्यूस की हमारी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने इतने अच्छे से हम लोग को मैंने जो रेस्पेक्ट दिया, जो स्नेह प्यार है आप लोग के स्कूल के, माने एकदम से कोई ईगो नहीं है। इतनी बड़ी स्कूल की, इतनी बड़ी संस्था की, दिव्या विशाल सिंह की, सब लोग आप लोग इतने ऊंचाई पर है, तब भी हम लोग को इतना रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं हर समय। उसके लिए तो हम लोग हर समय आपके पास आभारी हैं। ये संस्था सिर्फ आप लोगों के आशीषों से अपने बड़प्पन को प्राप्त कर रही है, उत्तर प्रगति पे जा रही है। तो निश्चित रूप से इस संस्था से कहीं बड़े आपके आशीष हैं, आपकी निष्ठा, आपका समर्पण, आपका सहयोग, वो सब बहुत बहुमूल्य हैं। और यही आधार संजीवनी है हम सबके इस समय में भी, जो एक बहुत विषम परिस्थिति का समय है, इसमें भी बच्चों को एक्सेल कराने का ये संस्कार हैं जो उन्हें जीवित रखे हैं और उन्हें उत्तर प्रगति पे ले जा रहे हैं। आप लोगों के बीच में यह भी जरूर बताना चाहूंगा कि अभी 2 दिन पूर्व विद्यालय का रिजल्ट अनाउंस हुआ 12th बोर्ड का, जिसमें लगभग 25% विद्यार्थी पूरे स्कूल के वो 90+ मार्क्स गैदर किए हैं। हाँ, 45 विद्यार्थी 95% से अधिक अंक से उत्तीर्ण हुए हैं। तो ये हम सब के लिए आप सबके आशीष का प्रतिफल है जो ये हो पाया है। गुरुजनों का बहुत अभिनंदन जी। ये विद्यार्थियों का जो आपने परीक्षा फल सुनाया, उसको सुन के मन बहुत प्रसन्नता को अनुभव कर रहा है। और आने वाले समय में ये आपका विद्यालय बहुत यशस्वी और पूरे दुनिया में नाम रोशन करेगा, ये हमारी प्रार्थना है ईश्वर से। और सबसे बड़ा जो शिक्षकों का समर्पण अर्पण है, उससे ये देख करके आज जो मैंने विद्यार्थियों के उत्साह से जो उनके गान थे, उनका जो व्याख्यान था, उनके जो लेक्चर्स थे, उनको देख के उनकी वाणी की जो ऊर्जा थी, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया स्थाली कुलाकर न्याय, उसे कहते हैं जैसे बटोही में एक चावल को पकड़ के पता चल जाता है कि चावल सब अच्छे पक गए। उसी प्रकार से मैंने स्थाली कुलाकर न्याय में ये देखा कि बच्चे अत्यंत ऊर्जावान हैं, अत्यंत यशस्वी हैं और भविष्णु हैं, देश के बच्चे भविष्य हैं। और उनकी सर्जना जो आप कर रहे हैं, उनका जो सृजन कर रहा है विद्यालय, वो बहुत सौभाग्य का बात है। और यहाँ कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा, जब देखिए विद्या वैभव तो सबके पास आ जाता है, लेकिन विद्या में जो सुगंध आती है वो संस्कारों से आती है। तो ये जो आपका विद्यालय और सारा परिवार है, यहाँ के जो शिक्षक हैं, यहाँ के जो अधिकारी गण हैं, उनके अंदर विद्या वैभव के साथ साथ जो वो संस्कार की सुगंध है, उससे यहाँ का विद्यालय बहुत यशस्वी बन रहा है। आए दिनों में मैं देख रहा हूँ बहुत यश प्राप्त कर रहा है। आने वाला समय ये बच्चे बहुत नाम रोशन करेंगे, संस्था का, अपने माता पिता का, अपने गुरुजन का, यही हमारी प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। मनाली मैम, अब मैं चाहूँगा कि आप अपने कार्यक्रम को यथावत जारी रखें और हमें हमारे जो आज के कार्यक्रम में अतिथि द्वय रहे हैं, आपका आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनः आपसे शीघ्र मुलाकात होगी, भौतिक रूप से मुलाकात होगी, इसकी आशा और प्रार्थना। Moving forward with our program, I would request our director ma'am to please speak a few words for us and guide our newly selected members for their posts. Please ma'am. Since the beginning, and I look up to you as a mentor and a guide. So thank you so much for coming and blessing us all today.
द्विवेदी जी भी अभी हैं क्या? नहीं मैम। दीदी जी का भी आभार कि उन्होंने वक्त निकाल के अपना इतना बिजी टाइम में से टाइम निकाल के आए और हम लोग को बहुत शॉर्ट नोटिस पे अपना टाइम दिया, अपनी ब्लेसिंग्स दी. So now, when it comes to the prefectorial board, my congratulations to each one of you, all of you, the head boy, head girl, Sujal, Shreya. बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे आ गई है अब. The house captains, the class representatives. Now these are leadership positions. They speak success stories about your life. There must have been a focus and a will to your life. That is why you are here at this position. You know, out of thousands of students. So congratulations and 3 big cheers for you. But the real work... Okay. But you know, try to remember this thing that the real work lies in front of you now. How will you behave and how will you take this opportunity is entirely it's your discretion. Use it as a platform to develop yourself, to become the very best and the most beautiful being you can be in this lifetime. Give yourselves exposure, utilize the exposure that this position gives to you. I'm sure your principals, your postal superintendent ma'am, your HM ma'am, and all these guests and mentors like Sarvajini ma'am, Devedi ji, इन सबका जो आपको साथ मिलेगा, जो मेंटरिंग मिलेगी, वो बड़ा वैल्यूएबल होगा आपकी लाइफ के लिए. तो इन सब का यूटिलाइजेशन अच्छे से करिएगा इस एक्सपोजर का. Then secondly, you will be role models. You are now role models for the entire school. So the onus now lies on you. आपका जो बिहेवियर होगा, आपकी स्ट्रेंथ होगी, आपकी करेज होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी. वो आप बोले ना बोले, उसको देखकर बहुत हजारों बच्चे उससे इंस्पायर्ड होंगे. तो वो किस तरह का एक आप इमेज देना चाहते हैं अपने जो साथ के बच्चे हैं, अपने आने वाले बच्चे हैं. Believe me, it's not easy. It's never easy to be a leader. Sometimes, even if you are feeling upset, even if you are feeling afraid, even if you are not feeling very happy, you will have to, rise up to the occasion and act like a leader. So welcome to this platform. Now you will be with us. You are with us on this platform, and I am very proud of you. And congratulations to each one of you. All my blessings. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am, for your valuable time, and thank you for guiding our heads. So, without further ado, I would like to inform you all that we have our manager sir with us. From such a busy schedule, sir always manages to keep time for us to interact with us, and we are really grateful to have you, sir. I would request you to please say a few words to our heads and greet them. Thank you so much, Sarojini ma'am. Thank you so much. हमारे राम नारायण द्विवेदी जी जो अभी तक हमारे साथ कनेक्टेड थे, और हमारे आप लोगों के सारे शिक्षकगण जो इसमें जुड़े हुए हैं, और आज जो आपका परिषद आपने सेलेक्ट करी है, जो बच्चे प्रीफेक्टोरियल बोर्ड को डिफरेंट पोजीशंस में ज्वाइन कर रहे हैं. आई हैव बीन ऑब्जर्विंग, though I am in office working, and it's not a Sunday for me, so I haven't been able to join you that formally, but yes, I keep observing because it is important for me to know how these flowers are blossoming in the campus. And I'm so happy to see that diction has improved, pronunciation has improved, kids have learned language well, and the whole comparing that is being done by Manali ji is really awesome. Avinash is guiding the whole event very, very properly and very professionally, and thank you so much for keeping me feeling all proud of you guys. I'm sure you will make your life lesson for everyone,
and as Sarojini ma'am has said that आप community के skills के बारे में कोशिश करेंगे. I was thinking about it that we have to inculcate somehow more such activities this year, that we make our kids hands-on with various skills that they need while they start working with the society. And रामनारायण द्विवेदी जी ने जो संस्कार शाला चलाई थी यहाँ, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. उनका डिक्शन, उनकी जो लैंग्वेज थी, जिस तरह से उन्होंने बोला, हमें ये कभी नहीं भूलना है कि हम कोई भी लैंग्वेज, कोई भी मीडियम में पढ़ाई करें, हमें अपने संस्कार नहीं भूलने हैं. यही सारा का महत्व है, यही आपकी संस्कार शाला का महत्व है. So keep up the good work, keep doing wonderful things. Congratulations to the whole new team, and congratulations to the teachers who have contributed to this event. And thank you so much for the guests, honorable guests who joined us and blessed this whole occasion. Keep doing wonderful. Thank you so much. God bless you. Thank you.